مالک خود ہو، وہ کہہ رہا تو میرا نائب ہے، تو اپنا مالک ہے بھائی، اب تو نے کیا کرنا ہے؟ اب یہ تجھے پتا ہونا چاہیے، مالک کو تو پتا ہوتا ہے نا اچھا، کہ اس کا یہ جو یہ خلیفہ ہے نا، جو لفظ خلف سے ہے پیچھے آنے، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ایک اور بھی ہوتا ہے، وہ بھی ادھر ہی ہے جہاں بیان انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کا مطلب اختلاف کرنے والا بھی، ایک دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے، اسی لیے تو وہ پیٹے تھے سارے کہ یہ اختلاف کرے گا، یاد کریں وہ پیٹے تھے نا، یہ قتل کرے گا، یہ ایسے کرے گا، ایسے کرے گا، اختلاف ہی ہے نا، یہ اختلاف ہی ہے، اللہ کی ہدایت سے یہ اختلاف ہی ہے، وہ جو پیٹے تھے نا، وہ خلیفہ کا مطلب وہ بھی بن، ٹھیک ہے، ہونا خلیفہ سے اختلاف، ایک مطلب اس کا یہ، ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے، اگر اس طرح دیکھیں نا تو اس پراسپیکٹ میں بھی یہ پورا یہ اختلاف کرے، اور آپ دیکھ لیں آج تک اختلاف ہی ہو رہا ہے، اختلاف ہی ہو رہا ہے، تو وہ اختلاف ہوگا تو ہی تو خلیفہ بنے گا نا، اگر اختلاف ہی نہیں ہوگا نہیں، پھر تو جو اللہ تعالیٰ نے جو بنا دیا ہے انسان کو، جہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا۔ یہ میرے مرشد بات یہ ہے، یہ خلیفہ کی ایک دوسری ٹرم کی بات ہے، ایک دوسرے پہلو، ایک پہلو تو یہ ہے نا کہ خلیفہ وہی ہوتا ہے جو جیسا پچھلا آدمی کیا ہے وہ اسی کے نقش قدم پہ ہوگا، یعنی وہ وہی کچھ کرے گا جو پچھلا کرتا ہے، ٹھیک ہے، خلیفہ اس کو بھی بولتے ہیں کہ جناب یہ فلاں مشرق کے یہ خلیفہ اول ہے نا، یہ خلیفہ دوم ہے، یہ اس سے مرشد سے اختلاف نہیں ہے، یہ مرشد کی اسی چیز کو لے کے آگے چلنے والا ہے، یہ اسی راستے بے شک جس پہ مرشد تھا اسی پہ یہ بے شک ایک دوسرا پہلو ہے اس کا، یعنی اگر آپ لغت میں دیکھیں تو اختلاف بھی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، آپ کی دوبارہ سے جو آپ کی ویڈیو گئی تھی ابھی آ گئی ہے، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ ایک یہ بھی بہرحال وہ جو ہے نا آزمائش، تو میں اس پہ مطلب یہ ہے کہ میرا دل نہیں مانتا کہ اللہ یہ زمین جو ہے یہ کائنات میں یونیورس میں میرا خیال ہے کہ ایک ایٹم کے برابر بھی اس کی حیثیت پوری یعنی یہ پرتھوی جو ہے، پوری زمین جو ہے، اور اس کے اوپر ایک انسان اور پھر اس کی آزمائش، ٹھیک ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں، اس کا کوئی جوڑ نہیں، اصل بات وہی مجھے لگتی کہ کسی چیز سے اس کو دور رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر سیدنا ایوب علیہ السلام کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس کا اس دور میں علاج نہیں، بڑا مشہور واقعہ سیدنا ایوب علیہ السلام، ٹھیک ہے، تو یہاں پھر آپ نبلو نہ تم لگائیں گے کہ اللہ نے پیغمبر کو بھی آزمایا، نہیں، وہ وجہ ہوگی، وہ بہتر جانتا ہے کہاں سے ایوب کو دور رکھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ صرف لفظ استعمال کرتے ہیں، آزمائش تو نہیں ہو سکتی نا، اس کی آزمائش تو نہیں، پھر اس کے عالم غیب کی نفی ہو جاتی ہے نا جب وہ آزماتا ہے، ٹھیک ہے، آزمائش کی نفی، وہ عالم غیب کی نفی ہو جاتی، سیدھی نفی ہو جاتی، کیونکہ آزمانے والا نتیجے سے 100% واقف نہیں ہوتا، یہ طے ہے بات، بے شک، اگر اس کو پتا ہے تو آزمائش کس بات کی ہے؟ بالکل، کس بات کی آزمائش اگر اس کو پتا ہی ہے؟ پتا نہیں ہے اور اس کا پتا کرنا ہے،
आजमाइश तो के लिए है ना, बेशक। वही होती है ना, हाँ, जिस बात का आपको पता है, ठीक है, तो फिर उसकी तो नहीं हो सकती। बेशक। बहरहाल उसके ना हाल में गए नफी हो जाती है इससे। तो अगर अगर उसको ये पता कहा है कि वो आजमा रहा हाँ, वो आजमाता नहीं है, वो रहमत करता है किसी न किसी तरीके से। वो कोई ना कोई मतलब ये है कि उसमें कोई हिकमत हो। फिर इसमें वो जो कहावत है, एक वाकया है जो बीरबल का, कि बीरबल कहता था जो होता है अच्छे के लिए होता रब तो किसी के साथ बुरा है। नहीं तो करता। बादशाह की जब वालदा का इंतकाल हुआ तो बीरबल पास खड़ा था, खबरी खबर लेकर आया, तो उसने कहा माशाल्लाह, वाह भाई वाह, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, बादशाह ने खामोशी इख्तियार की। उसने कहा खैर है, बड़ा अच्छा दोस्त भी था बादशाह का ये। फिर थोड़े दिनों बाद बादशाह, तलवार हाथ में थी, उसके हाथ से तलवार गिरी और अंगूठा कट गया। बीरबल ने कहा वाह वाह, कमाल हो गया ये तो, जो होता जो भी होता है है। अच्छे के। इस बात पे बादशाह को बड़ा गुस्सा है कि मेरे खून की नदियां बह रही हैं इधर और ये कह रहा है अच्छे के लिए होता है। उस दिन उसने गुस्से में आके उसको बोला जाओ इसको डाल दो जेल में। तो बादशाह को जंगल जाना पड़ा, तो उस जंगल में जाकर जंगल वालों के हाथ आ गया और उन्होंने सोचा कि आज कोई इंसान चाहिए जिसकी बलि देनी, जिसको हम उसकी बलि देनी है, कुर्बान करना है उसको। तो वो उनको बादशाह को लेकर वहां पहुंच गए, उनको बादशाह के अस्तर उतारे और उसको नहलाना शुरू किया, साफ सुथरा करके, क्योंकि बलि तो साफ सुथरा करके दी जाती है ना। वो तो उसको जैसे ही उन्होंने नहलाना शुरू किया तो एक बंदे ने उसमें से देखा कि इसका तो अंगूठा कटा हुआ। उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत गलत बात है, ये हमारी तो देवी जो है ना नाराज हो जाएगी, ऐसी कटी फिटी बलि देनी है हमने। उन्होंने बोला इसको छोड़ दो, ये वापस चला गया। तो वापस आके फिर वो बीरबल को बाहर बुलाता, तो कह रहा है कि ये क्या हुआ, मुझे तो उन्होंने ये अंगूठा गड़े, तू तो वाकई सही कहता था, लेकिन मैंने तुझे जेल में डाला, तूने इसमें भी बोला कि वाह वाह कमाल कर दिया बादशाह सलामत, जो हुआ अच्छे के लिए हो। इसमें क्या राज है? उसने कहा बादशाह सलामत, अंगूठा तो आपका कटा था, मेरा थोड़ी कटा था। अगर मैं बाहर होता तो आप मुझे साथ लेके जाते, आप कभी भी अकेले नहीं जाते मेरे बगैर। जब मैं जाता तो मेरा काम हो जाता। मैं मारा जाता। तो उससे बेहतर है कि फिर ये जो हुआ अच्छे के लिए हुआ ना, आपका अंगूठा भी अच्छे के लिए कटा और ये काम भी अच्छे के लिए हुआ। है। और जब हम इसे अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो ये फूले नहीं समाते। काबिल गौर बात। और जब इसके अपने हाथों का किया धरा किसी मुसीबत की शक्ल में इस पर आन पड़ता है तो चिल्ला उठता है। बेशक। ये देखें, जबकि वो अब भी निकाल लिया अपना अपने आप को सिर्फ रहमत के साथ मुंसलिक किया है। रहमत के साथ मुंसलिक किया, ठीक है। और जो इसके ऊपर आता है वो इसके अपने हाथों के बराबर। आवाज आ रही है? अच्छा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही चलो कोई और बात कर। ये तो मौजू ऐसा है कि इस मौजू की तो कोई इंतहा है नहीं है। बहरहाल ऐसे ही मेरे बैठे बैठे जेहन में आ गया यार, इससे तो आलमी गौर की नफी होती है, ठीक है। तो बस फिर ये मैंने सोचा कि यार आपके साथ शेयर करूं, ठीक है। बाकी को मैं आलम तो हूं नहीं, ये अपना ख्याल है, ठीक है। क्योंकि बलोना जो है ना उससे फिर ये सारा मसला चला है, बलोने से। बाज़ औक़ात इंसान के दिल में एक चीज आती है और उसके पीछे पूरी जो है ना कहानी बन जाती है, उसको पूरी समझ आ जाती है। ये भी अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे, उसकी रहमत है। बेशक। ये इल्म भी जो होना है, मतलब अपने गुरूर की बात नहीं है, ये उसकी रहमत है कि वो आपको चीजों का इदराक दे देता है। बहरहाल एक आदमी मुझे ना हर वक्त मेरे जेहन में रहता है,
इस हवा इल्म के है, और वो है बाबा जी अशफाक। बड़े सादा से अंदाज है, लोग उनके घर पे जाते थे, वो मिलते नहीं थे, ठीक है, तो फिर वो सोचते थे यार ऐसे करो, इधर कहीं ना कोई बाबा ढूंढो, कोई मजार ढूंढो, ठीक है, ये वहीं मिलेगा। करीब करीब है जो भी है उधर ही मिल सकते हैं। वो जाते थे कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे मिले, ठीक है। तो बड़े खूबसूरत अंदाज में उनका जिंदगी का मुशाहदा है, ठीक है, बड़े प्यारे अंदाज में असल में बहुत बड़ी बात मुशाहदे की करते ही थे। बात करते थे, और जिंदगी में उन्होंने मुशाहिदा किया ही बहुत। हाँ, उन्होंने सफर, और एक और शख्स हैं, एक बात मैं उनकी बताता हूँ आपको, अशफाक साहब की, कि वो कह रहे थे मैं जब बाहर पढ़ रहा था तो वहां पर हमसायों पे बात हो रही थी कि हमसाए कौन होते हैं ना, तो कह रहे जब हम डेली सुबह यूनिवर्सिटी जाते थे, जिस गाड़ी में जाते थे, तो हमारे हमसाए हमारे साथ साथ होते थे। उनका मतलब था कि जो गाड़ियां बराबर जा रही होती थी ना, कोई भी एक दूसरे को देखता था, हेलो कहता था, हाय कहता था, तो कहते असल में तो वो भी हमारे जो है ना हमसाए थे, वो हमारे रोड फेलो थे, क्योंकि रोज उन्होंने भी जाना होता था, उसी टाइम पे हमने भी जाना होता था। बात वो इस पे भी कर रहे थे कि टाइम मैनेजमेंट के, टाइम जो है ना अपना कैसे मैनेज किया जाए, कि अगर आप टाइम पे हर काम कर लेंगे तो आपको वो जो है ना आपके रोड फेलो भी बन जाएंगे। बड़ी खूबसूरत बात थी। हाँ, बात तो सारी थी। और जो बात रमज की है सबसे ज्यादा जिन्होंने की है वो वासफ अली वासफ। हाँ, सादा अल्फाज, उनका एक इतना सा जुमला पहाड़ बन जाता होता है, इतना सा जुमला, है। बेशक। और उनका चेहरा जो था ना वो सुर्ख था, दमकता था। बेशक। आपको याद होगा मैं और आप उनकी मरकत पे भी गए थे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, याद करें, मैं तो स्पेशल गया ही था। जहाँ जूतियां सीधी रखी बेशक। और वो हॉल में बाद में हमने लोग देखे थे, ठीक है, वहाँ सब इंटेलेक्चुअल बैठे, हाँ, इंटेलेक्चुअल बैठे, क्या बात। असल में मुरीद नहीं बनाए, उन्होंने पीर बनाए। बस सबसे बड़े पीर वही जो उनके असल। साथ जुड़ा ना, जो उनके साथ लगा, वो पीर ही बन गया। हालांकि हम लोग तो उस वक्त पता नहीं पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है, तो जब वो रुकते थे अपने कमाल पे। और मैं सिर्फ इसी काम के लिए गया था और वहां से वापस आ गया था, बस, और कोई काम नहीं था मुझे। हाँ, हाँ। भाई, अल्लाह नसीब करे जी दूसरे लोगों को भी ऐसी बात हो। जो भी वो बात मैंने उनकी पढ़ी सुनी, मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग है उनकी, तो अच्छा मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई नई बात कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर लगा कि इस बात की गहराई को उन्होंने मुझे ऐसे आम अल्फाज में समझा दिया कि चीजों को समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। एक जो सबसे बड़ी बात उनकी मैंने सुनी, आज मैं शेयर करता हूँ, कि जिसका बहुत ज्यादा असर हुआ। वो कहते थे आपका जो पीर होता है ना, जो आपका मुर्शिद होता है, वो एक इंसान होता है, उसकी भी बीवी होती है, उसके भी बच्चे होते हैं, वो भी एक दुनियादार आदमी होता है। और कभी भी आप पीर के इन मामलात में दखल अंदाजी ना करना जिससे आपको परेशानी लाहक हो जाए। कि जब भी आप सोचते हैं ना कि मेरे पीर के घर पे या मेरे मुर्शिद के घर पे भी ये हुआ तो क्यों हुआ, आप जरा थोड़ा सा अपनी तरफ देखें। कुछ शादी ब्याह का मामला है, किसी तकरीब का मामला है, तो हमारे बच्चे, हमारी बीवी हमसे क्या कुछ मनवा लेते, तो वो भी उस वक्त एक बाप भी होता है, एक ससुर भी होता है, एक शौहर भी होता
ہوں۔